Hey guys, a very warm welcome. I am Hina Bhimani. You guys are watching me live on your favorite Goki app, on your favorite show, the Hina Bhimani Wellness Show. And today we are discussing about quarantine के टाइम पे कौन सी ऐसी simple remedies है जो आप अपना सकते हैं to ensure that you don't have to run to the doctor. So basic I would say natural cure remedies that you can try sitting at home, which will help you to keep your immunity strong. Also, it will help you to fight basic problems like stomach ache अगर है आपको, या आपको back ache है, या you have indigestion issue, or you have constipation issue, or या headache है. So things like that. Okay, how to manage such things in quarantine so that you don't have to run to the doctor. Very interesting session coming your way, guys, so stay tuned, keep watching Goki, and feel free to ask me your questions. We have Anil Peer over here. Namaste Anil ji, thank you so much for tuning in. So guys, we have this wonderful quiz which is going to start from on this show in 3 minutes from now. So guys, all the very best, and I really hope that you all play this quiz and you all get lots and lots of good scores so that you all can donate these points to Uday Foundation. So guys, this quiz that we are playing is for a good cause. ये क्विज खेल के आप अपने पॉइंट्स उदय फाउंडेशन को दे सकते हैं जो हमारे फ्रंट लाइनर्स के लिए फेस मास्क बनाएंगे. सो लेट्स डू दिस ब्यूटिफुल डीड by playing the quiz, getting our friends and family also involved in this quiz and helping them to enhance their knowledge and also help them to do good karmas. Late date of Goki contest. Good evening, Saurabh Kumar. Thank you so much for tuning in. Namaskar. Good evening, Zama Bakri ji. Best of luck to you all. Thank you so much, Ajay, and thank you to everyone for tuning in. I see already 600 people watching me live, so thank you so much, everyone. So after the quiz is over, please don't forget to come back. Okay, so do remember to come back, and we will discuss today's session. So you have any questions, any illnesses, any things you want to discuss, anything you want me to tell you about, so let me know. Malikarjun, namaste. Farhan, assalamu alaikum. Good evening. Varun Prasad, hello. GM Kokar, namaste ji. Thank you so much, everyone. I'm so happy to see you all watching me live today on your favorite show, the Hina Bhimani Wellness Show. And हम जो है आज डिस्कस करेंगे some simple remedies, home remedies that you can try to cure some basic illnesses like headache hai, stomach ache hai, things like that. Good evening, Divya. Namaste. Thank you for tuning in. Session on DIY hair packs too. Okay, done. So I think I did a session on DIY hair face pack का मैंने session किया था. hair pack का session बाकी है. बिल्कुल करेंगे हम. Thank you for the suggestion, Divya. So guys, like this, if you have any suggestions for me, do let me know. I would love to talk about your favorite topic. Ram Babu Madhav Rapu ji, namaste ji. Thank you so much. So बस अब क्विज शुरू ही होने वाला है कुछ ही सेकंड्स में, और उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे आज का ये बढ़िया सा टॉपिक. I'm doing great, Soma. Hope you're doing good too. Good luck for the quiz to each and everyone. Good evening, Samit Roy. So ये क्विज खेलिए, और मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि हमारा होम क्वारंटीन वर्कआउट चैलेंज ऑन है, तो आप वो वर्कआउट देखकर घर पर वर्कआउट कर सकते हैं ताकि आप घर पर रहकर भी फिट रह सको. उससे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और उससे आप जीत सकते हो गोकी मर्चेंडाइज. अनिता अरोरा, नमस्ते. सो ऑल द बेस्ट. द क्विज इज जस्ट स्टार्टिंग.
So guys, the quiz is over. Do let me know what's your score. I would love to hear from you all. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे some home remedies for simple illnesses. क्या आप कैसी चीजें, कैसी रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं to cure simple illnesses? So stay tuned, keep watching Goki. We have VN Patil Advocate. Namaste. Sakshi Kumar, Anant Krishna Patwari, Ayush Solanki ji, Lal Bihari Prasad, Vidula Mahatre, Prem Sagar Prajapati. Thank you so much. Stay home. Yes, Anil Peer, a good message for everyone. Stay home, stay safe, and play the quiz, and try to keep your immunity strong, and try to use nature cure, as an alternative treatment to keep yourself fit and strong. So guys, लेट मी नो योर स्कोर. आपका स्कोर क्या है बताइए. हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की ओर. 1600 लोग, 1600 पीपल लाइव. दिस इज अमेजिंग. एंड 1.13K हार्ट्स ऑलरेडी. सो दिस इज सो कूल गाइज. कीप सेंडिंग दोस ब्यूटिफुल हार्ट्स. ऐसे ही हार्ट्स भेजते रहे, लाइक करते रहे सेशन को, और सेशन को देखते रहे, और क्विज भी खेलते रहे. निकिता दून 50. दिस इज अमेजिंग निकिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बताइए स्कोर क्या है, और हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर. ओके, अब घर पर रहकर जो बेसिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, सबसे पहला तो जैसे मैंने कहा, हेडेक जो है बहुत ही कॉमन है. बहुत लोगों को हेडेक हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, पेट का दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज, ओके, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, लूज मोशंस, कब्जी, बैक पेन, ये सारी चीजें हो सकती है. तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके एक प्रॉब्लम लेंगे, और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. अर्चना सुमानी, नमस्ते. यू गाइस कैन कॉल मी हीना, यू डोंट हैव टू कॉल मी मैम. नमस्कार सचिन देशमुख जी, नमस्कार. रमजान मुबारक हो आप सभी को भी. अनिल पीर गॉट 100 पॉइंट्स. कैसे? ट्रूथफुल ट्यूजडे ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल जय. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. जीएम खोकार 50, मिथिलेश सिंह 50, अरशद पीएमपी 50. दिस इज सो कूल. ध्रुमल पटेल 50, कृष्णन इज हियर. नमस्ते कृष्णन जी. नितिन कुमार 50, इंद्रजीत दास 50. दिस इज अमेजिंग. आपके स्कोर देखकर तो बहुत ही खुशी हुई है. मोर देन 20 प्लेयर्स गॉट 50. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कोच एज लकी चार्म. थैंक यू सो मच अजय, वेरी स्वीट ऑफ यू. And this is so sweet that this shows that how responsible and how we feel for our fellow people who are helping us, our frontliners who are constantly supporting us and ensuring that we all are safe. This is amazing. Thank you everyone for participating. Okay, so निकिता जी का पहले सवाल का जवाब हम देखते हैं. फूड एलर्जी का ट्रीटमेंट एंड टेस्ट क्या है मैम, प्लीज एडवाइज. फूड एलर्जी अगर है, ओके, तो उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो फूड एलर्जी का टेस्ट होता है. ओके, सो देयर इज लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, देयर इज वीट टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं. सो यू दैट इज कॉल्ड एज एन एलर्जी टेस्ट जो होता है, लैब्स में होता है. यू विल हैव टू गो फॉर इट. बट इफ यू डाउट एनी पर्टिकुलर फूड निकिता, जैसे आपको लगता है कुछ पर्टिकुलर खाना खा के आपको पेट में दर्द होता है, या कोई तकलीफ होती है, या हेडेक होने लगता है, या कोई अनकंफर्टेबल फील होता है, सो देन वो खाने को आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो खाने से आपको बार बार ऐसे हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो वो चीज को आप अवॉइड करेंगे. सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू डू. इज एनीथिंग दैट इरिटेट्स योर सिस्टम and you know about it, you get to know about it. Okay, a lot of people don't know that they are intolerant to lactose, or they're intolerant to gluten, they're intolerant to certain food items. A lot of them don't know, but if fortunately you come to know that you're intolerant to something, then you will completely avoid that thing. Okay, अब फूड एलर्जी को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय वही है कि जिस चीज से एलर्जी है आप वो चीज को ना ले. ओके, अब हम समझेंगे कि क्या हम ये एलर्जी को क्योर कर सकते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन, आई हैव मेट अ फ्यू पीपल, अ फ्यू डॉक्टर्स हु हैव एक्सटेंसिवली स्टडीड दिस एलर्जी एंड इट्स ट्रीटमेंट. वो लोग क्या करते हैं, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ वन डॉक्टर हु आई हैड गॉन टू फॉर सम रीजन.
एंड यू नो व्हाट दे डू इज, जैसे कि आपको जैसे कि ग्लूटेन एलर्जी है, व्हीट की एलर्जी है, सो दे विल गिव यू व्हीट, ओके, बट इन माइन्यूट क्वांटिटीज, बहुत ही स्मॉल डोसेजेस में, लिक्विड फॉर्म में आपको देंगे, जो भी चीज की आपको एलर्जी है। जैसे हम ये प्लाज्मा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोरोना की, जैसे कि किसी को कोरोना का डिटेक्ट हुआ है और फिर वो ट्रीट हो चुके हैं, तो उनका प्लाज्मा यूज करके जो है हम ट्रीट करते हैं लोगों को। उसी प्रकार जो ग्लूटेन है उसको धीरे धीरे बॉडी में इंट्रोड्यूस करने से बॉडी इम्यून होती है और उसकी एलर्जी निकल जाती है। बट टिल दैट टाइम यू कैन नॉट ईट दोज फूड, ओके। जैसे आपको तभी तक ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं खाना है। सो दिस इज हाउ सर्टन डॉक्टर्स वर्क, एंड हम क्या करेंगे इज व्हाट वी कैन डू विच इज इन आवर कंट्रोल इज टू एंश्योर that we do clean eating। हम clean eating करें। when I say clean eating, अगर कोई भी प्रकार की एलर्जी है या कोई भी हेल्थ इशू है, clean eating is the first step in nature cure। अगर हम नेचर क्योर की बात करें, सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लीन ईटिंग का, ओके। नाउ जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमको लगता है कि यार हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल वाला खाना खाना पड़ेगा, बट यू नो देयर इज अ ग्रुप ऑफ डाइटिशियंस who work to ensure that you get the right kind of food if you are sick, okay। आपको मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। I was working for this hospital, Kokilaben Ambani Hospital, and we had so many patients and we have a particular protocol to follow। जैसे डायबिटिक पेशेंट को ये इस प्रकार की डाइट देनी है, या हार्ट पेशेंट है तो उनको इस प्रकार की डाइट देनी है, या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको इस प्रकार की डाइट देनी है, कैंसर पेशेंट है तो ये पर्टिकुलर प्रकार की डाइट देनी है। तो हर एक का प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट होता है, हर एक को अलग तरीके से फॉलो करना होता है, सेम प्रोटोकॉल कभी भी नहीं होता। उसी प्रकार अगर आप हॉस्पिटल जाते हो और आप हॉस्पिटल वाला खाना खाते हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूविंग योर हेल्थ, ओके, बिकॉज यूर क्लीन ईटिंग। आप हेल्दी खाना खा रहे हो जिससे आपको आगे चलकर इन्फेक्शन नहीं होगा और आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी और आप जल्दी क्योर हो पाओगे। वैसे ही इफ यू आर क्वारंटीन, आप घर पर हो और आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, तो सबसे पहले जो है जो भी चीजें हमारी इम्यूनिटी के लिए सही नहीं है, जैसे कि फ्राइड चीजें है, चिप्स है, फरसान है, यू नो बेकरी आइटम्स है, जंक फूड है, ओके, पैकेज्ड फूड्स है, ये सभी चीजों को हम टोटली बंद कर दें और जितना हो सके इतना नेचुरल खाना खाए, ओके। व्हेन आई से नेचुरल, जो घर का बना हुआ खाना है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सारी चीजें नेचुरल है, घर की बनी हुई है, ये आप जरूर से ले। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स अच्छे से क्लीन कर साफ करके ले। पानी अच्छे से पीते रहे। पानी की डेफिशिएंसी से भी हेडेक होता है, ओके। सो हेडेक का एक प्रॉब्लम, एक रीजन ये है डिहाइड्रेशन। गर्मी इतनी बढ़ गई है, पानी शरीर में सही से नहीं जाएगा तो हेडेक हो सकता है। सो पानी अच्छे से पीते रहे सो दैट योर बॉडी गेट्स स्टेज हाइड्रेटेड। Is your name Hina? Yes, Anil Peer. My name is Hina. Join me in iftar. Thank you so much, GM Khokaji. Thank you so much. Namaste, Amit Pawar. Thank you, Sachin Deshmukh. Thank you for tuning in. And are you answer? I didn't get your point. Anil Peer ji, I'm not understanding what you mean to say. सुमन देवी जी नमस्ते। 15 नागेश्वरन जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज को करेला खा के मजा ही आ गया। उप्स, वाओ, करेला का साग। दिस इज अगेन दे से द फूड इज द मेडिसिन, ओके। अगर आप खाने को मेडिसिन के जैसे लेते हो तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। एज इन इफ यू आर इंक्लूडिंग ऑल फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स and healthy food in your diet, okay, your food becomes the medicine, okay, food is the medicine, you don't have to take anything else, okay। तो आप फूड मेडिसिन जैसा ले, हेल्दी चीजें ले, जैसे कि करेले का सब्जी है, इट इज अ मेडिसिनल फूड, राइट। उससे आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होगा, उससे आपके गट के इश्यूज सॉल्व होंगे, वो आपका हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो वी शुड टेक ईट और कंज्यूम फूड लाइक वी आर हैविंग मेडिसिन, ओके। यानी जरूरी नहीं है कि आप खाने का टेस्ट खराब हो। खाना जो है अच्छे टेस्ट का ही जो है होना चाहिए। हम अच्छा हेल्दी बना सकते, टेस्टी बना सकते। यू डोंट हैव टू मेक इट बैड टेस्ट। जरूरी नहीं है कि हेल्दी खाना जो है
वो गंदे ही टेस्ट, और लॉट ऑफ पीपल से दैट हाउ कैन यू ईट दैट काइंड ऑफ फूड, बट यू नो इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन. ओके, healthy food is actually very tasty. It's on how you make it and how you have your attitude. 3 things are important in this quarantine. Okay, if you want to stay fit, if you want to stay healthy, what you put in your mouth, what you put in your mind, and what you put out. Okay, how you work out. Okay, so आप अगर अच्छे से खाना खा रहे हो, healthy eating कर रहे हो, so then your health will be good. Okay, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमार नहीं पड़ोगे आप. so हेल्दी सा वर्कआउट जो है हमको, हेल्दी सा जो है खाना हमको खाना है, साथ साथ रेगुलर वर्कआउट करना है. योगा करे, वॉकिंग करे, डांसिंग करे, जो भी है अपने आप को एक्टिव रखे. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी. तो कोई भी बीमारी है तो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है. वर्कआउट करने से बेस्ट फायदा यही है कि आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, वट एवर न्यूट्रिशन यू आर पुटिंग इन साइड योर बॉडी गेट्स सर्क्यूलेटेड थ्रू ऑल द सेल्स. ओके, सो जैसे हेडेक है तो फर्स्ट चेक इफ योर वाटर कंजम्पशन इज राइट. वाटर अगर सही से कंज्यूम नहीं किया तो भी हेडेक हो सकता है. बहुत लंबे देर तक स्टार्विंग की, खाना नहीं खाया तो भी हेडेक हो सकता है. अल्कोहल, दारू ज्यादा पी ली तो भी हेडेक हो सकता है. इसीलिए हेल्दी खाना खाए, रेगुलर इंटरवल पे खाना खाते रहे, बहुत लंबा गैप नहीं करना है. नींद की कमी से भी हेडेक हो सकती है और हेडेक हो सकता है और काफी सारी बीमारियां हो सकती है. तो नींद अच्छे से ले, पानी अच्छे से ले, क्लीन ईटिंग करे तो आपको बहुत ही जो हेल्थ इश्यूज है वो ज्यादा नहीं होंगे और आप हेल्दी तरीके से ये क्वारंटीन का समय निकाल पाओगे. Missing your yoga classes? Me too, Krishnan. Yeah, I know I'm missing my morning yoga sessions. Let's see. We'll soon start it. अभी फिलहाल तो हमारा इवनिंग वाला स्लॉट है तो हम इवनिंग पर ही आपको मिलेंगे. कृष्णन, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू. सो so let's start talking about one disease at a time. So basics अगर हमारे क्लियर है then we can start trying different remedies. प्रॉब्लम ये होता है हम रेमेडीज करते हैं. ओके, जैसे हेडेक है तो हमने हेडेक के लिए रेमेडी फॉलो कर ली कोई, लेकिन हम बेसिक्स फॉलो नहीं करते. रेमेडी फॉलो की लेकिन बेसिक्स फॉलो नहीं करते तो उससे क्या है, रिजल्ट जो है हमको अच्छा नहीं आता. हम वापस से वही मुसीबत में फंस जाते हैं. जैसे कि आपको हेडेक है और मैंने आपको कहा हेडेक के लिए आप वी ऑल नो दैट जिंजर एंड हल्दी इज वेरी गुड फॉर हेडेक. तो जिंजर के लिए आप हल्दी और आदू जो है, अदरक जो है उसकी चाय ले सकते हो, या तो उसका जूस या उसको जूस में उसको हनी के साथ मिक्स करके ले सकते हो, विच इज वेरी गुड फॉर योर हेडेक. तो आपने सिर्फ ये ले लिया लेकिन आपने अपनी नींद का ख्याल नहीं रखा, आपने अच्छे से पानी नहीं पिया, तो ये हेडेक तो आपको फिर से होना ही है. इसीलिए हमको जो है प्रॉपरली अपना बेसिक जो है क्लियर रखना है, स्ट्रांग रखना है. तो हेल्दी खाना, हेल्दी स्लीप, ये अगर है आप फॉलो कर रहे हो, और वर्किंग आउट रेगुलरली, हेल्दी वर्कआउट, ये तीनों चीज को आपने फॉलो कर लिया तो फिर आपका मेन इशू जो है वो सॉर्टेड है. ओके, ये आपका बेस लाइन है कोई भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का. Having my iftar as well as watching you, that's great. Wasim, very very nice. इफ्तारी करते करते आप देख रहे हो, this is awesome. So इफ्तारी के लिए मैंने एक सजेशन दिया था. ओके, सिंस बहुत लोग जो है रोजे रख रहे हैं तो मैंने सबको सजेशन दिया था ये, तो फॉलो करने की कोशिश करें. सो गाइज, बाय द वे, आप जो रमजान का रोजा पाल रहे हो या आप रखते हो, सो इट्स वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. हम जाने अनजाने में जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं जब भी हम रमजान का रोजा रखते हैं. Now, what is intermittent fasting is where you don't eat for 16 to 18 hours to 20 hours. You don't eat for a particular period of time, and then you eat then maybe you can have 1 or 2 meals. Like iftar, like a Ramzan रोजा, हम सुहूर पर अगर खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमने इफ्तार पर खाना खा लिया तो that's all. We don't have to keep eating. So this is again a very big misconception in people's head that हमने पूरा दिन खाना नहीं खाया तो हमको बहुत अच्छे से 2 बार कम से कम खाना खाना चाहिए. No, you can survive in 2 meals also. 2 good, happy, healthy meals, you are sorted. You don't have to worry anything else.
आपने 2 मील का ख्याल रखा तो आपका रोजा अच्छे से रहेगा। आप सुहूर को मिस ना करें, अच्छे से सुहूर में खाए, इफ्तार में जल्दी खाए, हेल्दी खाना खाए और ज्यादा तेल घी वाला चीज वाला ये सारी चीजें ना खाए। थैंक यू दिव्या। कृष्ण सिंह, क्वारंटीन बेसिक सोल्यूशन बाय हीना, सो रेमेडीज फॉलो करे रोजाना। क्या बात है, जय के साथ कृष्णन भी शायरी सीख गए। दिस इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच कृष्णन। सो दैट इज वन थिंग। नाउ लेवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, व्हीट ग्रास ऑयल, ये सारे ऑयल्स भी जो है बहुत बढ़िया है। इससे हेडेक में जो है बहुत ही फायदा होता है। तो ये भी जो है आप ऑयल लगा सकते हैं अपने बेडशीट पर या अपने पिलो पर लगाकर आप सो सकते हैं। वो जो है उससे आपकी नींद भी अच्छी होगी और आपको हेडेक में भी फायदा होगा। सो इफ यू हैव दैट अवेलेबल, प्लीज मेक द यूज ऑफ इट। भाव्य गुप्ता जी, नमस्ते। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, नाउ से यू हैव हेडेक का हमने बात की, जैसे आपको बुखार आ रहा है। ओके, नाउ बुखार अगर 100 के ऊपर नहीं है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड बट यस, ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको बुखार आ रहा है, सर्दी है और यू फील दैट यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, प्लीज गेट योर सेल्फ चेक्ड। बट साइमल्टेनियसली ओके, ये वाला जो रेमेडी जरूर ट्राई करें। इस प्याज ले लीजिए, एक स्मॉल मीडियम साइज का प्याज ले लीजिए, आप उसको या तो चीज ग्रेटर पे ग्रेट कर लीजिए या तो आप उसे जूसर में डाल के उसका जूस निकाल लीजिए। और ये जो जूस है, प्याज का जूस है, ये खाने से हमको बहुत ही लाभ होगा। हमारा टेम्परेचर उतर जाएगा। ओके, अगर टेम्परेचर हाई है तो टेम्परेचर तुरंत उतरेगा और जो है बुखार भी कंट्रोल में आएगा। तो ये एक होम रेमेडी है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को बुखार आ जाए, बुखार आने पर ये रेमेडी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके, तो हमने बात की, बुखार की बात की, अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव इश्यूज। ये डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत लोगों को कॉमन होते हैं। खाना हजम नहीं होता, कब्जी हो जाती है, गैस बहुत बनता रहता है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको पेट में बहुत गैस बन रहा है तो आप जो है जीरा, ये जीरा पाउडर जो है आप खा सकते हो, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर गैस ट्रबल। तो जीरा जो है, क्यूमिन सीड्स जिसे हम कहते हैं, उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और उसमें एक छोटा सा पिंच ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए। वो डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है और उससे जो है गैस भी नहीं होगी। मेरे पास यहाँ पर एक डब्बा भर के जो है हमने बनाकर रखा है। वी हैव मेड दिस जीरा पाउडर, आई एम गोइंग टू शो यू। देखिए, जीरा का पाउडर बना लिया है हमने। ओके, हल्का सा सेकना है, फिर इसका पाउडर बनाना है और ये दिन में 2 बार लेना है। चू करना है अच्छे से। ओके, अच्छे से चू करे, जिससे डाइजेस्टिव इश्यूज दूर हो गए, गैस की तकलीफ जो है वो दूर होगी। आप जीरा के साथ सौंफ भी मिक्स करके खा सकते हैं। तो जीरा और सौंफ दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले ले, रोस्ट कर ले और उसका पाउडर बना ले और फिर वो आप खाइए। उससे बहुत ही फायदा होगा, गैस की तकलीफ नहीं होगी, खाने का डाइजेशन अच्छे से होगा और जो है आपको बार बार कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो डाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए फाइबर रिच फूड खाए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है रेगुलरली खाते रहे, सैलेड खाते रहे, उससे पेट अच्छे से साफ होगा और आप बीमार भी जो है कम पड़ोगे या नहीं पड़ोगे। ओके, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू जो हमको बहुत ही कॉमन हो जाता है, वो है कब्जी। कब्जी बहुत लोगों को हो जाती है, कब्जी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब ये कब्जी को हम कैसे दूर करेंगे? कब्जी को दूर करने के लिए सब्जा पानी, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये हमने बात भी कर चुके हैं इसके ऊपर। सो यू कैन टेक सब्जा विच इज स्वीट बेसिल सीड्स। इसको जो है हमको सोक करना है पानी में। इसमें हम नींबू डाल दे, इसमें हम पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट डाल दे और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाल दे और ये जो पानी है हम पी ले। इसमें आप शक्कर चाहो तो थोड़ी डालो या तो शक्कर कंप्लीटली अवॉइड करो, हनी थोड़ी क्वांटिटी में डाल दो, मिक्स इट वेल। ओके, एंड हैव दिस। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, वेरी गुड फॉर कूलिंग डाउन योर बॉडी, वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। जीरा, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, यस 1 टीस्पून जीरा लीजिए, जीरा का पाउडर, या तो आप रोस्ट करके आप उसे होल रखिए, यू डोंट हैव टू पाउडर इट।
ओके पाउडर करने से चूइंग इजी हो जाती है, इसीलिए हम पाउडर करते हैं। बच्चे जो है घर में अगर उनको भी डाइजेस्टिव इश्यू है तो उन्हें भी जरूर से आप ऐसा दें। अगर आप हो परेशान फ्रॉम डिसऑर्डर्स ऑफ गैस एंड कॉन्स्टिपेशन, ऑलवेज अजवाइन खा के आपको मिल सकती है इमीडिएट रिलैक्सेशन। बिल्कुल अजवाइन भी जो है बहुत फायदेमंद है। अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये 3 मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है जो डाइजेस्टिव इश्यूज है, गैस की तकलीफ है उसके लिए फायदेमंद है। एसिडिटी की तकलीफ अगर है तो आप एसिडिटी की तकलीफ में भी जो है जीरा और सौंफ ये 2 चीज ले सकते हैं जिससे आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर इज आप सुबह उठने के साथ खाली पेट चाय नहीं पिए, फ्रूट ले लीजिए या तो आप नाश्ता ही ले लीजिए, थोड़ी देर के बाद फ्रूट खाइए। बट आई डोंट वांट यू टू हैव टी और कॉफी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। You are fasting the whole night and after fasting and not eating anything, you straight away put caffeine into your system. That is very very bad for your body. तो ऐसा जो है हमको ख्याल रखना है, ये बात जो है नहीं करनी है। So that's all for you guys today. I hope you all had fun. I really enjoyed. We spoke about headache, we spoke about digestive issues, we spoke about constipation. ये भी मुझे बताना था, nausea feel हो रहा है, you feel like throwing up. Again chewing on to some jeera seeds powder and a pinch of black pepper and salt also helps in relaxing. इससे भी जो है sensation, vomiting sensation relax होता है और फायदा होता है। But someday if you feel like throwing up, please do not stop yourself and think that you know what others will think. प्लीज टेक ऑल ऑफ इट आउट। जो है आप कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू वांट टू थ्रो अप, प्लीज डू नॉट कंट्रोल दैट, थ्रो अप so that you feel nice and relaxed and empty. आपको सब साफ लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। कई बार खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए भी हमको ऐसी फीलिंग आ सकती है। Good evening, Dada. Thank you so much for tuning in. So guys, I'm glad that you've come and seen my show. We spoke about a lot of things. One more thing I wanted to say is दांत का दर्द. Yes, this is very very common. दांत का दर्द भी हो रहा है। Unfortunately, dentists are shut. अब फिटकरी करके एक जो है एलम जिसे हम कहते हैं इज वेरी वेरी गुड फॉर योर टूथेक। आपके दांत के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया है। व्हाट यू हैव टू डू इज फिटकरी जो है इट लुक्स लाइक व्हाइट कलर क्रिस्टल। ओके, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। इसको हमको पानी में उबालना है। सो यू टेक से अबाउट इतनी फिटकरी, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो, या तो होल चंक में है, उसको आपको पाउडर करना पड़ेगा। ओके, पाउडर इट। यू टेक 1 टीस्पून, जैसे कि इतनी सी अंदाजे से टीस्पून जितनी जो है, टेबल स्पून जितनी फिटकारी लेंगे हम उसको उसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी। ओके, इसे बॉईल करेंगे और इसका पूरा कसी मेल्ट हो जाए तब तक बॉईल करेंगे। उसके बाद हम इसे बॉटल में, स्टील की बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे और थोड़ा सा लेंगे उसमें से, एंड देन वी विल डाइल्यूट इट इवन मोर। उसमें और पानी डाल के हम उससे गागल्स करेंगे। दैट इज वंडरफुल फॉर टूथेक। तो अगर हमारे घर में किसी को भी टूथेक होता है तो हम फिटकरी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई फिटकरी टू गेट रिड ऑफ द कैविटीज। या दर्द है तो उससे आपको फायदा भी बहुत ही ज्यादा होगा। क्लव्स पाउडर ऑल्सो हेल्प फॉर टीथ। यस, क्लव्स पाउडर भी आप टीथ के लिए खा सकते हैं, या तो आप क्लव्स जो है लौंग आप अपने दांत के बीच में दबाकर रख सकते हो। यू कैन कीप सकिंग ऑन इट, उससे भी दांत के दर्द में बहुत फायदा होता है। सो लौंग इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर टूथेक और एनी डेंटल इश्यूज। So that's all guys. Thank you so much for tuning in. I hope to see you all tomorrow. Keep smiling. कल है बुधवार, 6:30 बजे शाम को फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। Keep playing the quiz, keep smiling, keep tagging Goki and all of us whenever you do any fitness thing or you do any exercise या आप कुछ healthy बनाते हैं तो हमें जरूर से tag करें। Thank you guys. You have a wonderful time ahead. Keep smiling and be the force. Namaste. Thank you everyone.